Alright, I think we are live now. Expected cutoff for JBIMS for a master domicile. We'll predict this. There are too many variation in slot 1 and slot 2. So let's wait for slot 3 and slot 4. Normally it is 98 plus for Maharashtra domicile, and last year if you see we have around 115 marks per 98% आया था. Okay, this slot has those two slots which has happened has lots of variations. Some of the students in slot 1 got 180 minutes to solve the paper, so obviously that will hamper the overall. Yes, that is general category. Alright, okay. Alright, so I will start with the session. HCF and some, I'll discuss all the questions. First I will discuss reasoning questions. I have noted down some of the questions, right? And I remember some answers also, right? So I will give you questions in brief, that what was the question and then what was the answer of that, correct? So we'll start with reasoning first. HCF and there were lots of questions, right? Slot 1 abstract was doable, yes, but slot 2 was very much tough in reasoning section. There were 2 sets on games and tournaments, 1 set on puzzle, which is very tricky. I mean, it's an old puzzle, but they changed the data for that, right? It was very tricky. If you have not solved it earlier, it will definitely be a problematic for many of the students, right? I mean, it is as good puzzle as cat puzzles this year, right? Okay, so starting with reasoning section, we have as far as I remember, I have 2 questions on directions, right? One was something like this, that 30 meters south, then 30 meter like this, then 20 like this, and 30 like this. I need to find the distance. Finally, what was the distance, right? So the answer of that question was 10, but none of the option has that answer, so the answer for that is none of these. Okay, there is one more question on directions only. I do not remember the data, but answer of that question was also 10, and that was in the option, if you remember. Okay, many questions on analogy, right? Like one question was, dog is to rabies, so mosquito is to what? That's very simple, right? Answer is malaria, correct? One was on this, similarly we had man is to biography, so nation is to what? That is also very easy, right? The answer was history, correct? Then we have doctor is to diagnose, so judge is to what? In some of the options you might get confused. Slot 1 vocab tough था. Slot 2 का भी, I mean, some of the words were tricky, otherwise it was manageable. So जज में एक ऑप्शन था जजमेंट और एक था पनिशमेंट. So हो सकता है कुछ लोग पनिशमेंट मार्क करके आ जाए, बट पनिशमेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट, सो द आंसर शुड बी जजमेंट. ओके, then we had reading is to knowledge, so work is to what? The answer is experience.
All right. Okay. Then we had porcupine is to rodent. So mildew is to what? I do not know at that time what was it. I mean the logic will be porcupine rodent खाता है तो mildew क्या खाता है? The options भी कुछ थे fungus, germs, insect, something like that. So you need to check it. Then we had glucose is to carbohydrates. That was simple. Some of those are very easy, right? Glucose is to carbs. So soybean is to what? The answer is protein. Alright. Okay, then we had one more easy one. Pigeon is to peace. पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है. So white flag is to what? White flag is for surrender, right? Many questions on analogy. एक और था जियोपर्डी समथिंग लाइक दैट, वो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था उसका. एक कंशाइस करके था, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो वो बता सकते हो. सो दीज आंसर्स आई रिमेंबर. ये कुछ थे. पजल्स की बात करेंगे, गेम्स एंड टूर्नामेंट की बात करेंगे, उसके भी आंसर्स मेरे पास हैं, राइट. कोडिंग डिकोडिंग सरप्राइजिंगली काफ़ी ईजी था, है ना. Have you remember how you I wrote the paper na second slot. Ayush. Okay. Odd one की बात करते हैं. Odd one ouch में एक था nephew, cousin, son, uncle, grandson. What is the answer? बता सकता है कोई? Nephew, cousin, son, uncle, grandson. कौन के भी करते हैं अभी? कृष्णा. कौन के कुछ 28 क्वेश्चंस तो मुझे याद आ गए हैं. इसका आंसर कौन बताएगा? अगर कल स्लॉट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. इट वाज इजी. मेरा कल है एग्जाम. ओके. हाँ तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअली, है ना. वो एक काफ़ी बेटर है. So answer of this is cousin, है ना. बाकी सब क्या है? मेल्स हैं, और cousin इज जेंडर न्यूट्रल. ठीक है, तो इसका आंसर होगा cousin. एक था आपका एरो, एक्स, और क्या था उसमें? एक नाइफ था, डैगर था, स्वॉर्ड थी, राइट. तो आप देखो एरो को छोड़ दो, अगर जो तीर होता है बेसिकली, तीर को आप मतलब फेंक के मतलब मारते हो, लेकिन जो एक्स हो गया, नाइफ हो गया, डैगर हो गया, या स्वॉर्ड हो गई, तलवार, है ना, ये सब हाथ से मारे जाते हैं. इसलिए आंसर क्या था इसका? एरो. आई कुड नॉट राइट द क्वेश्चंस इन द PPT or something like that because काफ़ी क्वेश्चंस थे और टाइम बहुत कम था, तो मैं लिख के कर रहा हूँ. हाँ, लेक, पॉन्ड्स, सी, रिवर, पूल. करेक्ट सतीश. तो लेक, पॉन्ड, सी, रिवर. सी था क्या? सी भी होगा, ठीक है. तो उसका आंसर है रिवर, बिकॉज रिवर फ्लो करती है और बाकी सब स्टिल होते हैं जनरली, राइट.
वन वाज दैट कीवी ईगल, इसको इरेज कर दूं मैं, लिख देते हैं। एक था कीवी ईगल, और क्या था इसमें, ईमू था, ईमू था, ऑस्ट्रिच था, और एक और था वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसका आंसर था ईगल, बिकॉज बाकी सब उड़ नहीं पाते हैं। ऑल द ऑप्शंस वर बर्ड्स ओनली, बट बाकी सब उड़ नहीं पाते हैं, ईगल उड़ पाता है, तो वो एक आंसर था। आपको 180 मिनट्स मिले थे, 150 मिनट्स मिला था। ये मॉर्निंग वाले स्लॉट में ज़्यादा इश्यू आया था, या कुछ लोगों को 180 मिनट्स मिले हैं, बट उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक था होटल इन, ऐसे कुछ दिया हुआ था, उसमें था एक क्लब, मतलब बाकी सारे जो थे वो रहने की जगह हैं, लेकिन क्लब रहने की जगह नहीं है, तो एक ये था। हाँ, पेंगुइन था, करेक्ट। टेंट, यस। तो बाकी सब में आप रुक सकते हो, क्लब इज डिफरेंट। ऑल्दो इसमें एक और लॉजिक बना सकते हो कि ये सब मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टेंट आप बनाते हो, तो आई मीन डिफरेंट ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। Some of you kinds can say club is the answer, some of you can say, I mean different logic, right? क्लब में आप रुकते नहीं हो, बाकी सब में रुकते हो, स्टे कर सकते हो, तो उस लॉजिक से क्लब है, या बट अगर आप ये देखो कि बाकी सब जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर हैं, तो टेंट भी हो सकता है कि, अब उसमें वही लॉजिक है कि उन्होंने किस लॉजिक से किया है। ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लॉजिक ढूंढना होता है, बट समटाइम्स वी कांट डिफरेंशिएट कि स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा है, वीक कौन सा है। मैं तो क्लब मार्क करके आया गया, ठीक है, बिकॉज आई मीन ये भी लॉजिक है ना कि कुछ होटल्स या जो रहने की जगह है वो टेंट्स भी होती है ना, आई मीन टेम्परेरी स्ट्रक्चर। हाँ सही बात है, आई मीन उसमें लॉजिक में कोई गलती नहीं है। अब सीईटी वालों ने क्या सोच के आंसर दिया है उस पर डिपेंड करेगा आंसर। आई मीन बोथ आर करेक्ट लॉजिकली, राइट। ओके, तो ये तो था हमारा एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे, है ना, सबसे टफ जो है। किसी ने किए थे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, 2 सेट थे, एक था राउंड रॉबिन और एक था आपका नॉर्मल सीड वाला जो होता है। सीमेट के डेट्स का एनी आइडिया कब आएंगे यार? कोई आइडिया नहीं, जी भी पता नहीं, सो रहे होते हैं ये लोग या तो वेट कर रहे होंगे कि MSCT हो जाए फिर बम्पर मारते हैं। अब नेक्स्ट वीक तो चांसेस नहीं है, इतनी जल्दी तो नहीं बोलेंगे, तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल शायद हो जाए या उसके आगे, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हाँ, तो एक तो था आपका कि 64 टीम्स हैं, इसमें 2 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, राइट। 2 क्वेश्चंस नहीं थे, 2 सेट थे, 2 सेट स्किप कर दिया। ये वाला तो कर सकते थे, इसमें 2 क्वेश्चन आसान थे यार। ये तो क्योंकि अगर आपने कैट का प्रिपरेशन किया है तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है ना, कि 64 टीम्स हैं, पहले राउंड में 1 का 64 से मैच होता है, 2 का 63 से होता है, सीड वाला जो होता है ना, अपसेट एंड ऑल, फर्स्ट वाला लास्ट से खेलता है, सेकंड लास्ट से खेलता है, थर्ड लास्ट से खेलता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। फिर 32 टीम्स जीत जाती हैं, एंड फिर फर्स्ट का लास्ट से होता है, सेकंड का सेकंड लास्ट से होता है, ऐसे करके डिफरेंट चलते रहते हैं। अपसेट का मतलब होता है कि लोअर रैंक वाला प्लेयर हायर रैंक वाला को हरा दे। मतलब लेट्स से 1 और 64 का मैच हुआ, 64 ने अगर 1 को हरा दिया तो वो अपसेट हो गया, ठीक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन आसान थे। एक तो था कि कितने राउंड्स होंगे, तो सोचो पहले राउंड में क्या होगा, ये 64 टीम्स खेलेंगी, उसमें से 32 बाहर आएंगी, तो उसका सेकेंड राउंड हो गया।
फिर 16 टीम्स होंगी, उसका थर्ड राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में 64 टीम्स का मैच हुआ, सेकंड में 32 का, थर्ड में 64 का, फिर 8 टीम्स होंगी, उनका फोर्थ राउंड में मैच होगा, फिर 4 टीम्स होंगी, उसका फिफ्थ राउंड में मैच होगा, फिर 2 टीम बचेंगी, उसका 6th राउंड में मैच होगा। ठीक है, तो 6 राउंड होंगे, करेक्ट। नंबर ऑफ मैचेस था, ये तो सबसे आसान है। नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में इज ऑलवेज n-1, तो 63। मतलब अगर कुछ नहीं करते तो ये क्वेश्चन के इस सेट के 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, बाकी थोड़े से ट्रिकी थे डेफिनेटली। एक था कि अगर 9th वाला टूर्नामेंट जीत गया तो वो किसके साथ खेल सकता है फाइनल। दैट वाज अ ट्रिकी वन ऑब्वियसली, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, शुड हैव बीन लेफ्ट आउट। ये करने वाला नहीं था, आंसर वैसे इसका 11 था अगर किसी ने किया है तो। ठीक है, एक था 4th की, जिसमें 4 ही क्वेश्चन थे इसके ऊपर। कौन सा लोएस्ट रैंक वाला प्लेयर है जो टूर्नामेंट जीत सकता है बिना अपसेट किए, और मिनिमम ऑप्शन 32 था, बाकी सारे ऑप्शन 32 से ज़्यादा थे। तो मुझे तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ लगी, I mean, या तो मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। अभी 32 वाला अगर जीत रहा है तो एक अपसेट तो पक्का ही करेगा ना वो, मतलब किसी को तो हराएगा ही ना। या ये पॉसिबिलिटी है हाँ डेफिनेटली कि मतलब हर एक में सारे अपसेट हो जाएं, दैट इज़ पॉसिबल राइट। कि मतलब फर्स्ट राउंड में, जैसे इस फर्स्ट राउंड में जो मैचेस हुए उसमें 1, 2, 3 ना जीत के 64, 63, 62 ये सब जीत जाएं, है ना। और कहाँ तक जीतेंगे, जो लास्ट मैच होगा वो किसका होगा, तो फर्स्ट राउंड में 65 सम आता है राइट, तो 32 का मैच 33 के साथ होगा राइट। तो अगर ये हो सकता है कि ये सब जीत जाएं और इसमें 32 जीत जाए, है ना। अब देखो उसके इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे इससे लोअर रैंक वाले ही हैं, सो ऑब्वियसली ये जीत सकता है, करेक्ट। सो इन दैट केस आंसर विल बी 32 इफ यू गो विद दिस लॉजिक। तो ये 4 क्वेश्चन इस वाले सेट में थे, तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन करने वाले थे, 2 नहीं स्किप कर सकते बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली हमारे पास। ठीक है, एक दूसरा सेट था जिसमें आपके पास 8 प्लेयर्स थे, A B C से लेकर H तक, और उसमें आपको कंडीशन दे रखी थी कि B ने इसको हराया, इसने इसको हराया, इसने इसको हराया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने किए हैं तो हमको पूरा टेबल बना के करना पड़ता है, ABCD ऐसे, ABCD ऐसे, एंड वी नीड टू मेक कंप्लीट टेबल 8x8 की, और फिर मतलब खुद से तो नहीं जीतेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस लग जाएगा। और जहाँ पर जो जीता है उसका नाम लिख देते हैं। सो इट वाज डेफिनेटली ट्रिकी वन, ये पूरा सॉल्व किए बिना आप कर नहीं सकते थे, तो ये भी स्किप करने वाला था, है ना, ये नहीं करना था एग्जाम में एक्चुअली। बट अगर किसी ने किया है तो आई विल टेल यू द आंसर्स। इसके आंसर्स क्या क्या थे, एक सेकेंड। हाँ, तो एक था कि F ने कितने मैचेस जीते हैं, F के कितने मैचेस जीते हैं, आंसर इसका था 4। एक था G ने कितने हारे हैं, G के लॉस्ट मैचेस, उसका आंसर था 3। कितनी टीम्स ऐसी हैं जिसके 4 विन्स हैं, इसका आंसर था 2। और एक था कि E ने किस किस को हराया, सो E won अगेंस्ट C and G। ये 4 क्वेश्चन के 2 सेट आए थे। ठीक है, श्रेष्ठ ने किया इसका मतलब है, इट वॉज डेफिनेटली ट्रिकी वन राइट। तो ये एक हो गया। एक आई थी पजल, काफ़ी मतलब ओल्ड पजल है वैसे तो, मतलब इन वन ऑफ द सेशन आई थिंक मैंने करवाई भी हुई है वो, राइट। चलो इसको बेस करके आगे चलते हैं, मुझे और वो बना लेना चाहिए थे वैसे, ठीक है। हाँ, तो एक बहुत पुरानी पजल है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक मशीन है, वेंडिंग मशीन, ओके। सो वेंडिंग मशीन में बटन है 1 2 3 4 करके, तो किसी भी एक बटन से 2 कोल्ड ड्रिंक बाहर आती हैं, जैसे लिम्का आ गया और कोका कोला आ गया, ऐसी
मशीन बटन 2 से लेट से कुछ कोई दो और आ गई है ना, और हर जो ड्रिंक है वो 2 डिफरेंट मशीन से आ सकती है। अब अगर ऐसा हुआ कि आपने 1 और 2 एक साथ दबाए और उसमें चारों कोल्ड ड्रिंक अलग अलग आती हैं तो 4 बाहर आ जाएंगी। बट अगर सपोज 1 में भी 1 में लेट से ए और बी हैं और 2 में बी और सी, तो बी एंड बी विल बी कैंसल्ड आउट, केवल ए और सी बाहर आएंगे। गॉट इट? इस तरह की पजल थी एक बहुत पुरानी, और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि 1 2 को दबाएंगे तो ये बाहर आएगा, 1 3 को दबाएंगे तो ये बाहर आएगा, 1 3 4 को दबाएंगे तो ये बाहर आएगा। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, वो पजल ऑलमोस्ट वही थी, राइट, बस ये कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे नाम दे दिए मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस समथिंग करके, है ना। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन वही था। पुराने क्वेश्चन सुनने का क्या फ़ायदा था वो बता रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बात है कि ये इतनी टफ पजल थी कि आपने पहले की हुई होगी, तब भी आपको दोबारा सॉल्व करना ही पड़ेगा। आई मीन मैंने कई बार सॉल्व करा ये पजल, बट फिर भी मुझे सॉल्व करनी पड़ी एक्चुअली, क्योंकि आंसर तो ऐसे याद नहीं होते ना अल्टीमेटली। तो ये भी डेफिनेटली नहीं हुई होगी, और किसी ने किया है तो आंसर बता देता हूँ। इसके आंसर थे हाँ, एक था कि 001 और 002 को दबा के क्या बाहर आएगा, तो उसका आंसर था मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, और एक और पी था शायद, मतलब 4 वाला आंसर था, एक ही ऑप्शन था वो। 1 + 2 + 3 को दबाएंगे तो क्या आएगा, ये सब। एक था कि किस ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस देगा, मतलब कि मार्केटिंग फाइनेंस वाले, तो उसका आंसर 2 + 4। एक था कि मैक्सिमम कितने बटन दबा सकते हो आप जिससे एटलीस्ट 2 कोल्ड ड्रिंक तो बाहर आए, 2 मतलब 2 ऑप्शंस तो बाहर आए। मुझे कोल्ड ड्रिंक याद आ रहा है बिकॉज क्वेश्चन वही था पहले। मतलब इसमें ये था कि अगर आप 5 बटन दबा दोगे तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज सब में 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर था 4। 4 में 2 एटलीस्ट बाहर आ जाते हैं। 1 2 3 को दबा दोगे या किसी भी 4 को दबा दोगे, सो यू गेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। ठीक है। एक था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक में बात करता हूँ तो कितनी नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर था 1। 1 तो नहीं आ सकता ना, बिकॉज या तो 2 आएंगी या 3 आएंगी या 4 आएंगी, कैसे आएगा है ना। वो जब आप टेबल बनाओगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इसमें इनफैक्ट 6 क्वेश्चन थे। एक था कि पर्सनल किस किस मशीन में आता है, उसका आंसर था 2 और 4, और एक था फाइनेंस किस किस के पास है, उसका आंसर था 1 और 3। इफ एनीबडी हैज सॉल्व्ड इट, दीज आर द आंसर्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन, टफ पजल, और उसके ऊपर 6 क्वेश्चन दे दिए। ये वाले स्लॉट का काफ़ी टफ हो गया बिकॉज ऑफ 2 गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड दिस पजल। तो आपके देखो 4 और 4 8 और 6 14 क्वेश्चंस तो क्लियरली टफ हो गए बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका मार्क्स कम कर देगा। नेम और टाइप ऑफ दिस पजल, ऐसा कुछ नहीं है, यानी रैंडम है, आपको लॉजिकल पजल्स ही है, मतलब इट्स नथिंग लाइक दिस की गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में या न्यूमेरिकल रीजन में इसको मैं कुछ डाल सकता हूँ। कुछ रैंडम पजल होती है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो काफ़ी फेमस बुक्स हैं, जॉर्ज जे समर्स हो गई है ना, शकुंतला देवी हो गई, इसको सॉल्व किया करो। मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट किया था जॉर्ज जे समर्स वाला, बट उसमें इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो मैंने क्लोज कर दिया। आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट अगेन। और उसका लॉजिक यही था कि जो भी कैट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी से स्टार्ट हो जाएं लॉजिकल बिल्ड करने, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब स्लॉट 1 में एक भी गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं था, राइट, बट यहाँ पे आ गया, देखो अब आ गया, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना। जितने लॉजिकल पजल्स करोगे उतना बेटर रहेगा। करेक्ट। चलिए, तो ये आपका हो गया 3 तो सेट ही बनते। एक था आपका वो नेपाल, चाइना, इंडिया, इराक समथिंग करके, है ना। 2 सेट आए थे इसके अंदर जिसमें कंडीशनल अरेंजमेंट था, मतलब सीरीज बनानी थी आपको। एक्चुअली लीनियर अरेंजमेंट था बट वो कंडीशनल बेस्ड था। आई मीन कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनिशियली और बाद में आपको हर क्वेश्चन में
डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक देकर यू नीड टू सॉल्व इट। तो ये दोनों भी टफ हो गए। तो अब देखो 3 सेट तो वो टफ हो गए, और ये दोनों भी इजी नहीं थे बिकॉज दोनों ही कंडीशनल वाले थे, हर क्वेश्चन आपको सोचना पड़ता। तो 5 सेट ऐसे हो गए हैं जो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो स्लॉट 2 का AR काफ़ी ही टफ हो गया बिकॉज ऑफ दैट। विल देयर बी नॉर्मलाइजेशन, होना तो चाहिए बट वो क्या करेंगे वी डोंट नो ना। फिशेस वाला भी कराता हूँ। हाँ, तो मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है ना, तो मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट नीड नो द आंसर्स। तो जो चाइना, नेपाल, इंडिया, इराक वाला था, उसमें पहला वाला था कि अगर नेपाल 3rd नंबर पे है और चाइना 1st नंबर पे है तो इंडिया कहाँ पर होगा। इसका आंसर था 2/4, यहाँ तक मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, एक था कि अगर इराक चाइना से पहले है तो इराक कहाँ पर है, उसका आंसर था 2। एक था कि अगर नेपाल 4 पर है, इंडिया 3 पर है तो इंग्लैंड कहाँ पर होगा, उसका आंसर था नन ऑफ दीज। तो ये होगी 3 क्वेश्चन की। एक थी वो फिशेस वाली, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, है ना, किंगफिश, और एक बी से कुछ नाम था, 7 थी ऐसे, राइट। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो उसमें कंडीशन दे रखी थी कि ये इसके पहले आएगा, इसके बाद में आएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, उसमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। 7 आपके पास हैं, विच ऑफ दीज इज करेक्ट ऑर्डर। तो वो तो आपको केवल कंडीशन चेक करनी थी, नथिंग एल्स, है ना। तो उसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 5 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, 4 याद हैं, 5 थे वैसे। एक था किंग 5 पे है तो कौन सा क्या पूछा था वो मुझे याद नहीं आ रहा था ना। एक क्वेश्चन था मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जिससे करेक्ट ऑर्डर निकल जाएगा। मतलब 4-5 ऑप्शन दिए मैं आपको कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे दूं आपको, सो विच ऑफ दीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विल गिव यू द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द फिशेस। तो उसका आंसर मेरे हिसाब से तो नन आ रहा था, किसी से नहीं निकल रहा था। ओके, एक था कि अगर किंगफिश 6 नंबर पे होगी, सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो उसमें एक था कि रोहू जो है दैट विल बी 5th नंबर, दैट इज नॉट पॉसिबल, रोहू 5 पे नहीं हो सकती, ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, एक था आपका कि बी से जो नाम था वो, बी अगर 3rd नंबर पे है तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो उसका आंसर था कि इंडियन श्रिम्प जो है वो 7th पे होगी, दैट इज ट्रू। दीज आर द आंसर ऑफ फिशेस वाले आंसर। इसमें 5 थे, मुझे 4 के आंसर याद आ रहे हैं, एक का आंसर याद नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने सेट सारे कर लिए, 5 सेट हमारे हो गए। ब्लड रिलेशंस के 4 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे मुझे याद नहीं बट आंसर मुझे याद है। एक का आंसर था नीस, एक का आंसर था फादर, एक का आंसर था सन, और एक का आंसर था सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये ब्लड रिलेशंस के हो गए। एक सीरीज आई थी, सीरीज का कोडिंग में भी आते हैं, है ना। सीरीज का एक ही क्वेश्चन था, 8, 6, 9, 23, 97। तो देखो इसमें बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप बड़े नंबर पे चेक करो। ये आपका ऑलमोस्ट 97 था ना, 97 मिल गया कुछ इंटू 4 87 था शायद। तो देखो ये इंटू 4 -5 है, ये इंटू 3 -4 है, ये इंटू 2 -3 है, और ये इंटू 1 -2 है। सो नेक्स्ट होगा इंटू 5 -6, जो भी आएगा वो चेक कर लेना। काफ़ी सारों का स्लॉट 2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे एक ही याद है। ठीक है, अगर किसी को याद आ रहा है तो बता दो,
सॉल्व कर लेंगे उसको। मुश्किल होता है कि 200 क्वेश्चन याद में से इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो मतलब यू कांट एक्चुअली रिमेंबर क्या हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं। कहाँ गया ऑप्शन? कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इजी थी यार, मतलब स्लॉट में एक था कि ल्यूट, LUTE, ल्यूट को आप लिखते हो म्यूट, फेट को लिखते हो गेट, ठीक है। तो ब्लू को क्या लिखोगे? काफ़ी इजी था ये, आप देख रहे हो कि ये 3 वर्ड तो सेम ही है और बाकी में +1 हो रहा है, तो सिंपली बी का सी होना था, आई। ठीक है, नेपाल वाले में करा दिया दीपक, अगर मिस हो गया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। उसके आंसर बता दिए हैं, नेपाल चाइना वाला। दोज क्वेश्चन कैन रेफर दिस टू क्रैक JBM। सही बात है। एक लाइव देखा अभी और नागपुर सेंटर, अच्छा लाइव वाला। सुबह वाले में भी काफ़ी हुआ है, सुबह वाले में भी 40 मिनट हो लेट स्टार्ट हुआ, सर्वर डाउन हो गया तो 40 मिनट गायब हो गए बच्चों के, 15 मिनट के बाद सर्वर डाउन हो गया तो रीस्टार्ट हुआ, 5 मिनट मिले। तो अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं। स्लॉट 2 में पजल खतरनाक थी, हाँ बिल्कुल। तो ये आसान था। एक था रोड वाला, कि रोड को लिखते हो URDG, तो आई थिंक स्वैन का पूछा था, तो ये भी सिंपल था, +3 किया हुआ था सब में। कोडिंग काफ़ी आसान है ये, इट्स नॉट फेयर डेफिनेटली, क्योंकि बट वही ना, आप लड़ लो जाके, क्या करोगे। दीज स्टूडेंट्स हैव एडवांटेज ओवर अस। देखो वो यार लक की बात है सूरज, मतलब स्लॉट 1 हो जाता, क्योंकि हम सेलेक्ट तो कर नहीं रहे, मतलब जब जैसे कैट जब ऑनलाइन होना फर्स्ट टाइम, तो यू कैन सेलेक्ट द स्लॉट, वहाँ पर हम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते थे 40 स्लॉट में से कौन सा देना चाहते हो आप। बाद में वो भी ख़त्म हो गया, तो सब कुछ लग पे हो जाता है काफ़ी चीज़ें। और ये चीज़ ऐसी जिसको हम कंपनसेट कर भी नहीं सकते, मतलब वो कैसे कंपनसेट करोगे आप इसको, आई मीन इसके मिनट्स गए वो तो गए ना, अब उसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे, तो वो हार्ड लक ही है अल्टीमेटली। नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली बात है, बट क्या ही चाहते हैं। एक था मद्रास वाला, मद्रास का को लिखता है NBESBT, ये भी काफ़ी आसान था, +1 कर रहा है। CR था ही नहीं इसमें यार, तो बॉम्बे को क्या बोल रहा है ना। हाँ AB वाला बताता हूँ HCL से। अभी क्वांट पे आएंगे, 40 मिनट छोड़ो, अभी 8 बजे स्टार्ट हुआ। अच्छा एक और है, उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट उसमें लॉजिक यही था कि -1 बीच में एक +1 कर दिया था, फिर -1 और वो पूरा देखना होता है, ऐसे नहीं कि 3 को देख के आंसर मार्क कर दो, तो वो नहीं था। दीपक तुम शायद लेट ज्वाइन किए हो, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। कंडक्टिंग मैनेजमेंट एग्जाम्स फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ये तो कहानी है भाई, इसमें क्या है श्रेष्ठ, मतलब ये अकेला तो नहीं कर रहा है, ये तो फिर भी 800 क्वेश्चन बना के दे रहा है आपको, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं। कैट जेट IFT सब में गड़बड़ हुई हैं। अल्फ़ाबेट वाले याद ही नहीं, इतने मुश्किल थे यार युग, मतलब याद करना मुश्किल है उसको इन अ वे, तो आंसर कैसे याद होगा। एब्स्ट्रैक्ट सूरज मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं किया, सही बताऊं तो, क्योंकि वो मैंने कुछ 110 मिनट्स दिए और मेरे कुछ 135 अटैम्प्ट हुए थे, उसके बाद मैं रिवाइज करने बैठ गया आंसर याद करने के लिए, इसी सेशन के लिए एक्चुअली। तो फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट देखा ही नहीं, बट अगर आप एनालिसिस देखो स्लॉट 2 का जो मैंने और लोकेश सर ने लिया है, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी टफ आई थी स्लॉट 2 की, और काफ़ी क्वेश्चन ऑड वन आउट वाले थे, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है स्लॉट 2 के अंदर। स्लॉट 1 में अलग प्रॉब्लम्स थी, यहाँ अलग प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके कोडिंग वाले जो मुझे याद है ना, काउंटिंग बेस्ड था, ओके। अब मैंने देखा ही नहीं तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हमारे हो गए रीजनिंग के जो मुझे याद आए हैं, ठीक है। और किसी को याद आ रहा तो बता देना। अब आते हैं क्वांट पे।
क्वांट के मुझे 28 क्वेश्चन याद आ गए हैं, और बाकी कोई मिस होगा तो तुम लोग बता सकते हो। सारे ऑड वन आउट थे, हाँ वो तो सारे ऑड वन आउट थे वो बिल्कुल। I have solved some questions with rotating series logic. I hope you able to give the answers. Okay. But I don't know its logic. Rotating series ये क्या है भाई? कुछ नया मतलब हो सकता है मुझे नाम बताओ क्या है, बट नाम किसी ने कुछ दिया होगा। सर कैन महाराष्ट्र डोमिसाइल ओपन कैटेगरी गेट JBS? ये लास्ट ईयर की कहानी है, मतलब इस साल पता नहीं क्या होगा। 98% आई थी ना लास्ट ईयर 115 मार्क्स पे। दूसरी क्वेश्चन ऑफ कोडिंग रोडिंग -1, हाँ बिल्कुल। कोडिंग रोडिंग काफ़ी आसान थी, मतलब उसमें कुछ नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम इज 2 क्वेश्चन वो गेम्स एंड टूर्नामेंट की, और वो पजल, मतलब वो 14 क्वेश्चन तो वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया वहाँ पर। चलो क्वांट पे आते हैं। क्यू में एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपको पता है एनी नंबर विच हैज़ यूनिट प्लेस एज 2, 3, 7 और 8 वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो उसमें एक ऑप्शन था 9252, दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स आंसर। ठीक है, क्वांट काफी आसान था। एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क तो भर भर के आया, देखो है ना। A प्लस बी किसी काम को करते हैं 18 डेज में, B प्लस सी करते हैं 24 डेज में, C प्लस A करते हैं 30 डेज में, तो A B C कितने में करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आता 18। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और था, उसका डेटा मुझे याद नहीं है, बट डेटा के साथ चेंज था, बाकी सब सेम था, मतलब बिल्कुल यही पूछा हुआ है और कुछ नहीं था। ठीक है, A is bigger than B, अच्छा हाँ वो वाला भी था, उसका आंसर क्या था यार, मैंने लिखा था कहीं पे, रुको अभी लास्ट में बताता हूँ। ठीक है दीपक, दैट वाज D, हाँ शायद D था। एक का D था और एक का K, और एक क्वेश्चन था ना कि V के अराउंड कौन है, तो K और S समथिंग ऐसा कुछ था ना। D वाज, हाँ D वाज एवियस, करेक्ट, श्रेष्ठ एंड रूवन, हाँ अब याद आ गया मुझे, उसका आंसर D था, करेक्ट। एक और सीरीज का क्वेश्चन था कि V किस किस के बीच में बैठा है, उसका आंसर K प्लस समथिंग था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, 2 + 3 कर लो इसको। एक क्वेश्चन था, एक TSD के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, टफ था, कि एक प्लेन 3 AM पे चला और 4 PM पे पहुंचा, ये कैट का ही रेप्लिका था एक तरह से, और फिर 7 PM से चला दूसरा प्लेन, और नेक्स्ट डे 3 PM पे पहुंचा। दोनों प्लेन 700 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं, तो डिस्टेंस बताना था ए और बी के बीच का, तो आंसर इसका था 11550। ऑलराइट, देन वी हैड कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे। एक था ना कि वो 2 बिस्किट 4 केक, बिस्किट था कुछ और था मुझे याद नहीं आ रहा, 4 केक थे प्लस 9 मिल्क शेक थे, वो 70 रुपीज़ के आते हैं। एक बिस्किट प्लस 2 केक 8 रुपए के आते हैं, तो मिल्क शेक कितने का होगा। तो ये भी काफ़ी आसान था लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर। इसको डबल करके माइनस कर दूंगा तो 3m मतलब 9m की वैल्यू आ जाती है। 8 था कुछ और था, 2 था समथिंग लाइक दैट, वो याद नहीं आ रहा डेटा का, बट आंसर 3 आ रहा था। देखो 4 था ये शायद, तो 4 का डबल 8, 8 माइनस हुआ 17 में से 9 बचा था, तो 3m बराबर 9 आया था, तो 3 आंसर, यस। और था ट्विन प्राइम, हाँ, कि जैसे a बराबर b + 2 और a और b दोनों प्राइम हैं, तो 100 से नीचे कितने ऐसे पेयर बनेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम।
फिन प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया। ऐसे आपको काउंट करने थे 100 तक। इसका आंसर है 8। यस, रोवान इज करेक्ट। 8 पेयर बनेंगे। एक था आपका बोट स्ट्रीम के ऊपर था, है ना, बोट की स्पीड वाटर से ट्रिपल है, ये x है तो ये 3x है। 40 किलोमीटर जाने और आने में जाते हैं मतलब और आते हैं, तो 4 आवर्स का डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस 4 का दिया हुआ था। तो वाटर की स्पीड पूछी थी, इसका आंसर था 2.5। करेक्ट श्रेष्ठ। 12 मैन, अच्छा हाँ ये वाला भी था 12 मैन, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ तो ये भी आसान था। 12 मैन 10 डेज में करते हैं और वुमेन हाफ एफिशिएंट हैं, तो 10 वुमेन कितने में करेंगी? तो 10 वुमेन का मतलब 5 मैन हो गया बेसिकली। तो 12 इंटू 10 अपॉन 5 करना था आपको। करेक्ट दीपक, ठीक है, एक ही हो गया आपका, ये मुझे याद नहीं आता। तो 60 अपॉन 5। अभी पहले सारे कर लेते हैं फिर देखते हैं ना। इज इट पॉसिबल टू क्रैक जेबी विद 125 मार्क्स? तो स्लॉट 2, हाँ हो सकता है बिल्कुल सूरज, मतलब जितना डिफिकल्टी लेवल टफ हो गया है तो पॉसिबल है अगर इन्होंने ठीक से स्कोरिंग की एंड नॉर्मलाइजेशन किया तो। ए बी वाला मुझे याद है, मैं करवाता हूँ अभी। पहले बिल्कुल जितने याद है वो सारे कर लेते हैं, फिर आप कुछ मिस हो जाएंगे तो वी कैन डिस्कस, ठीक है। हाँ ए बी वाला आ गया देखो, कि एक क्वेश्चन था ना कि A16 और 30B, इसका HCF दिया हुआ था 18 और LCM कुछ दिया हुआ था, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो A और B क्या वैल्यू हो सकती है? तो 18 से तो मतलब था नहीं यहाँ पर, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल 18 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल बनने के लिए क्या होगा? 6 + 1 7 + 2 8, तो ये 2 हो गया, ऐसी B 6 हो गया। तो 2 and 6 विल बी द आंसर। कंफ्यूज करा तो कुछ नहीं है बेकार में, सिंपल 9 का मल्टीपल ढूंढना है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। अगर थोड़ा स्मार्टली खेलते तो काफ़ी क्वेश्चन एक ही स्टेप से हो रहे थे। हाँ 14 पॉइंट, ये तो काफ़ी आसान था, 14.28% ऑफ 322, आंसर इज 45.98, करेक्ट। मतलब 1/7 कर दो तो 46 आता है, राइट, तो उससे थोड़ा सा कम होगा बेसिकली। ठीक है, और क्या था आपका? पी और क्यू का, टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चन थे। पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ था 2:3, और गिवन था कि पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो जो फास्टर है वो कब करेगा? तो आंसर था इसका 40। ऑलराइट, एक था आपका हाँ 1 से लेकर n तक नंबर लिखे, उनका सम को n ही मान लूँ फॉर अ टाइम बिंग, तो n स्क्वायर आपका, तो आपको ये ढूंढना है कि किस नंबर का स्क्वायर इसके आसपास है। तो 1600 आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो 40 × 41 अगर मैं करूँ तो ये आपका आता है 1640। तो अगर 1650 तो ऑब्वियसली आपने 10 को 2 बार काउंट किया था, तो 10 आंसर है इसका। ठीक है, 12 क्वेश्चन ये हो गए, आगे चलते हैं। जो लोग लेट ज्वाइन किए या मिस किया है दोबारा देख लेना इसको, राइट, वीडियो को। कल भी मैंने एक सेशन लिया था, उसमें बताया भी था कि लास्ट ईयर कितने कितने गड़बड़ हुई थी। इस स्लॉट के अंदर एक भी DI नहीं था, एक भी DS नहीं था, सुबह आए थे। नंबर सिस्टम HCF LCM भर भर के था। आंसर 10 होगा ना, 5 क्यों होगा? हाफ थोड़ी करेंगे। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ गड़बड़ है, हाफ करेंगे, सही बात है। 40 × 41/2 करेंगे, तो ये 1640/2, हाँ 5 आंसर है, सही है, करेक्ट। मैंने गलती कर दी स्पीड के चक्कर में मैंने 10 मार्क कर दिया, करेक्ट। कार एंड बस स्पीड, हाँ उसका भी था,
कार और बस वाला लिखा हुआ है क्या मैंने, क्या क्वेश्चन था याद है क्या? चलो ये वाला कर लेते हैं पहले एक बार। एक वो मीना नीना वाला था, मीना और नीना, मतलब वो एक पॉइंट से चलते हैं। मीना की स्पीड थी 4.5, तो 27 किलोमीटर जब जाता है तो नीना अपनी स्पीड डबल कर देती है, तो कुछ दिया हुआ था कि कितने आवर्स मिलेंगे, है ना? तो उसकी स्पीड से कुछ समथिंग दिया हुआ था ना, सम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया ये 38 स्पीड हो गई 5/18 इंटू 180 मिनट था, है ना? हाँ, सम ऑफ क्यूब ऑफ, हाँ लेंथ ऑफ ट्रेन वाला भी था, वो भी कर रहे हैं सारे। तो इसका कितना आया था, इसका 1900 आया था। 1900 में हमने 200 ऐड 2100 हुआ था, ये मुझे याद आ रहा है। 2100 में फिर पूछी थी उसकी लेंथ। लैग हो गया क्या? अब आ गया? हाँ करेक्ट। इसके बाद उसने क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा। 750 आंसर था क्या प्योर वैसे? ठीक है, ओके। और क्या था, एक बेल वाला था कि वो फिर 6x6 वाले होंगे 36, है ना, 5x5 वाले होंगे 25। सम ऑफ स्क्वायर निकालना था बेसिकली। 36 + 15, 25 + 16 + 9 + 4 + 1, दैट इज योर आंसर। हाँ, एक था कि एक कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4, 5, 6, 7, 8 आते हैं। तो ये काफ़ी इजी था, एलसीएम निकाल के -1 करना था। इन पांचों का एलसीएम आएगा 2520 -1, दैट्स योर आंसर 2519। ठीक है, फिर लैग हो गया क्या? क्या हो रहा है ये? तो ठीक है भाई, अच्छा आ गया वापस। ओके, 18th क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करें? किसका आंसर था 25। ठीक है, एक था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स दिया हुआ था 196, तो इवन का सम बताना था। सिंपल क्वेश्चन था ये, 14 का स्क्वायर है तो 210 आंसर। ठीक है, वन वाज देयर, हाँ एक सेट थ्योरी के ऊपर था कि सेट ए है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्यू इज़ रैशनल नंबर राइट, लेस देन 5, और एक है बी जिसमें रियल नंबर्स हैं मोर देन इक्वल टू 5। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? अब वो ऑप्शन इतने बड़े बड़े तो मुझे याद नहीं आ रहे। जैसे एक था कि लार्जेस्ट ऑफ दिस इज 4.9999, वो तो गलत हो गया। चल रहा है ना? ओके, हाँ तो इसमें आंसर सी या डी ऑप्शन था जो याद आ रहा है। 21
एक था आपका ओके, एक था आपका HFLSM पे और भी था कि वो 180 बनानाज हैं, है ना, या लाइंस हैं, सोल्जर्स कुछ था, 216 और 324, उनको स्क्वायर में खड़ा करना है सेम नंबर बेसिकली। तो वही अच्छे वाला क्वेश्चन था, इसके अच्छे निकालना था अल्टीमेटली आपको, नथिंग एल्स। ठीक है, 36 आएगा ये बस। एक था आपका कि 31 से लेकर 40 तक कितने नंबर 73 के साथ को प्राइम है। तो 73 खुद प्राइम नंबर है, सारे के सारे ही होंगे। यू जस्ट नीड टू काउंट कि 31 से लेकर 40 तक कितने नंबर्स हैं। 40 था क्या था, 40 नहीं था, कुछ और था, मतलब ऐसी कुछ था, और आंसर में 17 है उसका, 17 नंबर आ रहा था आई थिंक। ठीक है, 23 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 17 आंसर था, ये मुझे याद है। एक था हमारा कि दो लोग अगर 12.5 के डिस्टेंस पे हैं, 47 था, हाँ तभी 17 आएगा, करेक्ट। अगर एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो 2.5 आवर्स में मिल जाते हैं, सॉरी 0.5 आवर्स में, और अगर ऐसे जाते हैं तो 2.5 आवर्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो फास्टर वाले की स्पीड पूछी थी, फास्टर किसी की पूछी थी, आंसर 15 किलोमीटर पर आ रहा था, ये पक्का है। ऑलराइट, एक था हमारा 4 प्राइम नंबर का एवरेज, एवरेज ऑफ 4 प्राइम नंबर्स आपको दिया हुआ था 12.25। सो इनमें से कौन सा पक्का उसका एक पार्ट होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे। तो अगर आप सम देखो तो 4 नंबर का सम आपका आ जाता है 49। अभी प्राइम नंबर अगर आप देखो, ये चारों अगर ऑड नंबर होते, प्राइम नंबर अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो चारों ऑड होंगे, तो उसका सम तो इवन आना चाहिए था, बट ये ऑड है, तो 2 को धोना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, वन ऑफ द नंबर्स, अदरवाइज हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर था 2। ठीक है, एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ए कैन डू अ जॉब इन 30 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज, मिल के कितने में करेंगे, मतलब इससे आसान तो क्या ही हो सकता है, राइट। एक था आप सिंपल HFLSM के ऊपर कि 5/8, 15/16 और 25/36 का HFLSM दोनों बताओ। उसमें HFA निकाल दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। LCM निकाल दो, सॉरी LCM एक ही ऑप्शन में डिफरेंट था और वही आंसर था। LCM ऊपर वाले का LCM लेंगे तो 75 आएगा, नीचे वाले का HCF लेंगे तो 4 आएगा, तो दैट्स, और ये एक ही ऑप्शन में था, तो HCF मैंने चेक भी नहीं किया। हाँ, तो एक ब्रिज वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे ये ट्रेन्स के ऊपर, मुझे दोनों के आंसर याद हैं। एक का आंसर आ रहा था ब्रिज वाले का 94.5 और एक का आंसर था 18 सेकेंड्स। ठीक है, और एक क्लॉक के ऊपर याद आ रहा है कि 5 से लेकर 6 के बीच में 70 डिग्री एंगल कब बनेगा। इस तरह क्वेश्चन तो हमने काफ़ी किए हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर था 540, 2 बार बनेगा बेसिकली, है ना। पहले वाला आंसर था नहीं, यू जस्ट नीड टू डू 150 प्लस 70, क्योंकि 5 बजे का बेस लोगे तो 150 हो जाएगा आपका, 70 आगे चलोगे अपॉन 5.5 करना था, दैट गिव्स 540। ठीक है, तो ये कुछ 30 मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारे हो गए, है ना, क्वांट के, बाकी याद नहीं है, आप किसी को याद है तो बताओ। 540 आंसर है करेक्ट रुवान। 30 क्वेश्चन मुझे याद आ गए, वो हमने कर लिए। और कोई याद आ रहा है किसी को? रीजनिंग तो हमने मोरलेस सारा ही कर लिया, मतलब सेट भी कर लिए, सब कुछ कोई कहता। ठीक है,
चलो डन है, फिर आप लोगों में किसका कल स्लॉट है? तो सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स, हाँ। तो वो पूछा था कि इनमें से कौन सा सम ऑफ क्यूब नहीं है, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना था कि सम ऑफ क्यूब क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, राइट। बेसिकली यू जस्ट नीड टू चेक कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है। तो दो ऑप्शन में 75 दिख रहा था मेरे को, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अगर मतलब 5 यूनिट प्लेस है तो 25 तो होना ही चाहिए लास्ट 2 प्लेस, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। और 2 में ही था वैसा, और उनमें से एक आंसर था डेफिनेटली। एग्जैक्ट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बट आंसर ए या डी में से एक था। बीच के बी और सी तो मुझे याद है कि वो 75 थे उसके उसमें। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, जिनका कल है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सब कुछ सोच के चलना, ठीक है। तो बेसिकली चिल रहना है और कुछ नहीं करना है, राइट। अपना फ्री माइंड से दो। अब ग्लिचेस होंगे तो होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका। टेंशन लोगे तो जो कर पाओगे वो भी नहीं कर पाओगे। 14400, ये कौन सा वाला बता रहे हो? इसका तो नहीं था, बट हाँ ये क्वेश्चन तो था एक। एट 281 क्वेश्चन क्या था, याद है? सम ऑफ क्यूब्स, ये था क्या? अच्छा, वो 75 किसी और का था क्या? एक 5-5-6 डिजिट के नंबर थे, लास्ट में 75 तो कुछ और था क्या? बेसिकली लॉजिक यही है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना था आपको। तो अगर ये ऑप्शन थे तो 14400 इज परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन में परेशान करने वाला नहीं होता है, राइट। वो उसका लॉजिक यही होता है कि आप बेसिक लॉजिक पे जाओ एंड यू जस्ट नीड टू चेक इट, दैट्स ऑल। चलो ठीक है, 9 बज गए, बहुत टाइम हो गया। जिनका हो गया और जितने आंसर चेक कर लिए दैट इज़ गुड। देख लेना कितने करेक्ट हैं। बाकी जिनका कल है, ऑल द बेस्ट। कल एनालिसिस मिलते हैं शाम को, ठीक है। चलो बाय बाय।